میرا نام ظفر ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں ایک چھوٹی سی دکان میں کپڑے بیچتا تھا۔ وہ دکان کرائے پر تھی لیکن کافی اچھی چل رہی تھی اور کافی گاہک آتے تھے اور میں بھی بہت تجربے کار تھا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی ذرا ریشمی کپڑے دکھا دے۔ اس کی بات سن کر مجھے برا لگا کیونکہ میں تو اس کے بیٹے کی عمر کا ہوں گا۔ کافی ہٹی کٹی تھی، شاید اسی وجہ سے مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسے چھوڑ کر باقی گاہکوں کو کپڑا دکھانے لگا۔ وہ بولی، دیکھو بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں تم سے کب سے کپڑا مانگ رہی ہوں، مگر مجال ہے جو میری بات پر کان دھرو۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں دکھانا تو بتا دو تاکہ میرا وقت برباد نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ میں نے اپنا منہ بس سوڑا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت میرے محلے کی ہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن شازیہ خالہ نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی کے لیے درزن کو کپڑے دینے جانا ہے اور مجھے انہیں وہاں لے جانا ہے۔ شازیہ خالہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے میں ہی ان کے گھر کے کام کرتا تھا۔ میری کزن کی شادی ہونے والی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ خالہ کی بیٹی زیادہ خوش نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہیں تھی، شاید وہ کسی کو پسند کرتی تھی۔ خیر، میں کون ہوتا تھا اس سے یہ سوال کرنے والا؟ بہرحال مجھے یہ صورتحال اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اداس رہتی تھی۔ میں کپڑے لے کر خالہ کو ساتھ لے کر درزن کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میری حالت غیر ہو گئی کیونکہ درزن وہی عورت تھی جو اس دن میری دکان پر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ بھی ہوا کی طرح اڑ گیا تھا۔ میں فوراً باہر چلا گیا۔ جب خالہ تھوڑی دیر بعد آئی تو کہنے لگی، ظفر، کپڑے تو میں نے دے دیے ہیں لیکن تم نے گھر دیکھ لیا تو تم ایسا کرنا، 3 دن بعد جا کر خود ہی کپڑے لے آنا۔ خالہ کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ میں اس دن درزن کے پاس کیسے جاؤں گا۔ 3 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ خالہ نے خود یاد دلایا کہ ظفر، کیا تم کپڑے لے آئے ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ مجھے درزن کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گیا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا، ہاں بتاؤ ظفر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم شازیہ کے بھانجے ہو، لیکن تم نے اس دن اچھا نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا۔ کیا میں ان سے دل کی بات کہہ دوں کہ میں نے ان کے ساتھ کیوں صحیح طریقے سے بات نہیں کی تھی؟ میں نے فوراً کہا، دراصل آنٹی، میں سب کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتا، لیکن اس وقت آپ نے مجھے بھائی بنا لیا تھا۔ میں کہاں سے آپ کا بھائی لگتا ہوں؟ میں تو آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوں گا۔ درزن نے میری بات سنی تو وہ شرمندہ ہو گئی، کہنے لگی، اچھا، مجھے معاف کر دو، دراصل میں جس دکان پر بھی جاتی ہوں وہاں سب کو اپنا بھائی بنا لیتی ہوں۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے درزن سے وہ سارے کپڑے لیے اور اس سے کہا، آپ دوبارہ میری دکان پر ضرور آئے گا، میں آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد درزن میری دکان پر آئی اور مختلف قسم کے کپڑے خریدے۔ میں نے اس کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا۔ اس کے بعد میری دکان پر بہت اچھی سیل ہوئی۔ میں درزن کے گھر بھی جانے لگا، خصوصاً جب میری کزن کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ درزن کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلے ہی گھر کو چلاتی ہے اور لڑکیوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتی ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تبھی میں نے درزن سے کہا، کیا ہوا؟ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دیا کروں گا۔ تبھی میں نے درزن سے کہا، کیا ہوا؟ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دیا کروں گا۔ اگر آپ کو میری ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ درزن بہت خوش ہو گئی۔ وہ ویسے بھی خالہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ خالہ نے بھی درزن کے سامنے میری کافی تعریفیں کی تھی۔ یوں درزن میری خالہ کے گھر بھی جاتی رہتی تھی۔ شادی کی تیاریوں کی وجہ سے اماں پہلے ہی خالہ کے گھر چلی گئی تھی اور میں بھی اماں کے ساتھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی کزن فاطمہ کو دیکھا، وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی اداسی کی اصل وجہ کیا ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کی بات پکی ہوئی تھی، اماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ دیکھو، اس کے سسرال والے بہت حساس ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے تکلفی کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جتنا ہو سکے تم اس سے دور رہو۔ اماں کی بات مانتے ہوئے میں نے فاطمہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اس کے لیے مشکل بناتی، ورنہ فاطمہ اور میری گہری دوستی تھی اور ہم دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ لیکن اب جب میں فاطمہ کو اداس دیکھتا تو مجھے بہت پریشانی ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ خالہ نے پیسہ دیکھ کر ہی اس کی شادی اس خاندان میں کر دی ہے اور فاطمہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ایک دن جب مجھے موقع ملا، اماں اور خالہ شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھی اور فاطمہ گھر پر تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، میں نے دیکھا فاطمہ اکیلی تھی اور کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے میری موجودگی کا احساس ہی نہیں کیا اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، لیکن فاطمہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو، کسی کو بھی مت بتانا۔ ہاں، یہ سچ بات ہے کہ میں حسن سے محبت کرتی ہوں، حسن کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اماں نے میرا رشتہ زبردستی اسد سے پکا کر دیا ہے۔ اسد میں کیا رکھا ہے؟ نہ رنگ ہے نہ روپ،
बस अच्छा कमाता है, तो अम्मा ने ये देखकर रिश्ता उसके साथ कर दिया है। अब मैं सारी जिंदगी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। अम्मा मेरी बात समझती ही नहीं है। लेकिन प्लीज अम्मा को मत बताना कि मैं हसन से मोहब्बत करती हूँ। हसन मुझसे आखिरी दफा मिलना चाहता है और वो मुझसे यही कह रहा है कि शादी से पहले मैं उसके पास आऊं ताकि वो मेरी मोहब्बत को महसूस कर सके। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैंने ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। घबराहट में मैंने सारी सच्चाई खुद ही जान ली। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने फातिमा को समझाया, नहीं फातिमा, ऐसा मत करो। हसन से मिलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर तुम अपना आप पहले ही हसन को सौंप दोगी तो फिर असद को क्या दोगी? अपनी जवानी असद के लिए संभाल कर रखो। फातिमा ने कहा, नहीं, मैंने सारी जिंदगी अपनी जवानी हसन के लिए संभाल कर रखी थी। मैं तभी अपना ख्याल रखती थी ताकि हसन को ये अमानत दे सकूं। उस पर सिर्फ हसन का ही हक है। मैं असद के पास नहीं जा सकती। हत्ता कि अगर मेरी उससे शादी भी हो गई तो मैं अपना वजूद उससे दूंगी, लेकिन मेरी रूह में तो हसन होगा। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने फातिमा को बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फातिमा बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और लंबे बाल उसे बहुत पुरकशिश बनाते थे। शादी की वजह से उस पर जो निखार आ रहा था वो आला दर्जे का था। फातिमा उस वक्त जवान और खूबसूरत लड़की थी और अपनी शक्लो सूरत और जिसामत की वजह से वो मुझसे काफी साल छोटी लगती थी। उसका जिस्म भी काफी भरा हुआ था। शायद ये शादी का असर था। जोश पुरनुमाया थे, पर फातिमा अपनी तमाम जवानी हसन को देने पर बाजिद थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्यों कर रही है। मैंने उसे काफी समझाया कि मैं नहीं चाहता कि हसन जैसे बदमाश लड़के के पास वो जाए और अपना सब कुछ उसे सौंप दे, क्योंकि मैं जानता था कि आजकल के हालात कैसे हैं। मैं नहीं चाहता था हसन उसका फायदा उठाए। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन फातिमा रुकने को तैयार ही नहीं थी। अगर मैं उस पर गुस्सा करूंगा या उसे धमकाऊंगा तो शायद वो रुक जाएगी। मैंने वैसा ही किया। मैंने कहा, फातिमा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, वरना मैं खाला को हसन के बारे में बता दूंगा। मेरी बात सुनकर फातिमा डर गई। कहने लगी, प्लीज ऐसा मत करो, तुम भी तो किसी से मोहब्बत करते होगे। अगर तुम अपने महबूब से ना मिले तो क्या तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगे? प्लीज इस तरह मत करो। अगर कोई तुम्हारे साथ ये सब करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? फातिमा ने मुझसे कहा कि मेरे जज्बात सिर्फ हसन के लिए हैं। अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके साथ जाऊंगी। मैंने उसे समझाया, अगर हसन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया और तुम्हारी वीडियो बना ली तो फिर क्या होगा? फातिमा ने कहा, प्लीज इस बात का किसी को भी मत बताना। तुम्हें तो उल्टा मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम मेरे लिए मुश्किलात बढ़ा रही हो। याद है बचपन में हम एक साथ होते थे, तुम भी तो एक लड़की से मिलते थे। क्या तुम उसको भुला चुके हो? मुझे भी इसी तरह हसन से मोहब्बत हो गई है। प्लीज मेरी बात मान लो और मेरी मदद कर दो। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं उसे हसन के पास ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि मैं उसके साथ ही रहूंगा ताकि हसन कहीं छुपकर उसके साथ कुछ गलत ना करे और उसका फायदा ना उठा सके। ये सुनकर फातिमा ने शर्त मान ली और कहने लगी, तुम उस कमरे में बेशक छुप जाना। फिर मैं फातिमा को अम्मा से छुपकर हसन के घर ले गया। वो एक स्टोर रूम में गई और मुझे कहा कि मैं बिस्तर के पीछे छुप जाऊं। मैंने बिस्तर के पीछे छुपकर हसन का इंतजार किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। फातिमा हसन के साथ लिपट गई और कहने लगी, बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ, चलो अब जल्दी करो। आखिरी दफा हम एक दूसरे को महसूस तो कर लें, उसके बाद हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। हसन ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा ये वजूद किसी और के पास होगा। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि ये वजूद मेरा होगा, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। वो फातिमा को हर जगह से महसूस कर रहा था। कभी वो उसे छेड़ रहा था और कभी उसकी कमर के नीचे से हाथ डाल रहा था। मैं ये सब देख रहा था और मेरे जज्बात भी मचल रहे थे। हसन कभी उसे अपने पास बुलाता, कभी उसे महसूस करने की कोशिश करता। कुछ देर बाद फातिमा की हालत देखकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मैंने पहली दफा ये सब कुछ देखा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं, लेकिन मैंने खुद को काबू किया। वो लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं हसन की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने जल्दी से फातिमा की वीडियो बना ली जिसमें वो हसन के साथ वो सब कुछ कर रही थी। वीडियो बनाकर मैंने मोबाइल अपनी जेब में रखा और कुछ देर बाद वहां से चला गया। फातिमा ने अपने कपड़े पहने और जल्दी से सेट हो गई। फिर मुझे बुलाया और कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमने ये सब कुछ देख लिया है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, पर अब तुमने ये सब कुछ देख लिया है तो इसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाना। मैं नहीं चाहती कि कभी तुम उसे याद करो।
हसन से मेरी आखिरी मुलाकात थी जो कि अब हो चुकी है। अब तो तुम्हें भी यकीन आ गया होगा, हसन मुझे सच में चाहता था। अगर हसन के दिल में कोई ऐसी बात होती तो यहाँ कैमरे लगा देता, लेकिन देखा ही होगा यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं अभी भी यही सोच रहा था कि कैसे मैं फातिमा को अपने लिए तैयार करूं। जब से मैंने उसे वो करते हुए देखा था, मैंने यही कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो मेरे पास आ जाए। शादी में 3 दिन बाकी थे, हर कोई खुश था, फातिमा भी खुश थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने अपना वजूद हसन को सौंप दिया है। अब उसके साथ कुछ भी हो उसे कोई परवाह नहीं थी। एक रोज जब फातिमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, मैं उसके पास चला गया। उसने आंखें खोली और कहा, क्या हुआ, कोई काम है? मैंने कहा, हाँ, एक बहुत अहम काम है। मैंने जल्दी से कमरे की कुंडी लगाई ताकि कोई अंदर ना आ सके। रात भी काफी हो चुकी थी और सब सो चुके थे, तो हम दोनों को यहाँ कोई नहीं देख सकता था। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन था। फिर फातिमा ने पूछा, क्या काम है? कहीं हसन ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, या कुछ और हो गया है? वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे रोक भी सकती हो। फातिमा ने मेरी बात सुनी तो घबरा गई। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और वो वीडियो सामने रख दी जिसमें वो बिल्कुल वाज़ेह थी और हसन उसके साथ था। कोई भी उस वीडियो को देखकर अपने जज्बात को सुकून दे सकता था। फातिमा ने वीडियो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ये वीडियो कहाँ से आई? मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ से आई, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हसन ने वहाँ कैमरे लगा रखे थे, जो कैमरे नजर नहीं आ रहे थे। मैंने उस कैमरे को तलाश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने नहीं आया। लेकिन ये वीडियो मुझे मेरे दोस्त ने भेजी है। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि ये वीडियो कहाँ कहाँ जा सकती है। मेरे दोस्त को बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मेरी कजन हो। उसने बस ये वीडियो मुझे खुश करने के लिए भेजी है, लेकिन अगर ऐसी एक और वीडियो बन जाए तो शायद मेरा दोस्त उसे डिलीट कर सकता है। मेरी बात सुनकर फातिमा हैरान हो गई। उसने कहा, अगर ये वीडियो पूरे खानदान में फैलती है तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरी तो परसों शादी है, मैं क्या करूंगी? मैंने कहा, मेरा दोस्त एक ही बार में अगर चाहे तो वीडियो डिलीट कर सकता है, जब मैं उससे बताऊं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर फातिमा की पैरों तले से जमीन निकल गई। जफर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने दोस्त को कैसे यकीन दिलाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ लगते हैं? उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, अगर हम दोनों एक वीडियो बना लें और उसे अपने दोस्त को भेज दें तो शायद उसे यकीन आ जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो वीडियो डिलीट भी कर देगा, वरना तो वो वीडियो लोगों को भेज भेज कर खूब पैसा कमाएगा, क्योंकि उसका यही काम है। फातिमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने कहा, भला मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारा दोस्त है, फिर भी अगर वो वीडियो डिलीट ना की तो फिर मैं क्या करूंगी? मैंने उससे बताया, वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मेरी खातिर ये वीडियो जरूर डिलीट करेगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन ये सबूत भी होना जरूरी है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वरना वो मुझसे सबूत मांगेगा। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना पर मैं वो वीडियो डिलीट करवा सकूं। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया था। अब वक्त बहुत कम है, अगर तुम चाहती हो कि वो वीडियो डिलीट हो जाए तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। मैं भी बहुत मजबूर हूँ, वरना मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। फातिमा बहुत परेशान हो गई थी। वो दिल से मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के तहत उसे मेरे साथ ये सब करना पड़ा था। मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरा झूठ कामयाब हो गया था। उसके साथ ये सब करने के लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला था। मैं भी मजबूर था, लेकिन मैं इतना जान गया था कि फातिमा के लिए ये सब करना मुश्किल नहीं है। अगर वो हसन के साथ ये सब करने पर राजी हो सकती है तो वो मेरे साथ भी हो सकती है। कुछ देर बाद वो बेड पर लेट गई और यूं मैंने अपनी सारी दिली ख्वाहिश पूरी कर ली। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इस तरह मैंने फातिमा को कह दिया कि अब मैं ये वीडियो अपने दोस्त को भेज दूंगा और फिक्र मत करो, अब तुम खुशी खुशी अपनी शादी के फंक्शन को एंजॉय करो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर चला गया था। वो मेहंदी वाली रात बहुत ज्यादा बेचैन थी। मुझे लग रहा था कि फातिमा उससे फिक्र में है कि कहीं उसकी वीडियो लीक ना हो जाए। रात को जब फातिमा ने मुझे इशारा किया, मैं दर्जन आंटी से बातें कर रहा था। वो मेरे साथ बहुत गपशप लगा रही थी। जब मैंने फातिमा को देखा, वो इशारे करके कमरे में आने का कह रही थी। दर्जन ने भी वो इशारा देख लिया था और कहा कि तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है, सब ठीक तो है ना? मैंने दर्जन को बताया कि फातिमा मेहमानों के बारे में पूछ रही है और फिर मैं फातिमा के पास चला गया। फातिमा फौरन कहने लगी, हम दोनों ने कल रात जो किया था, तुमने वो वीडियो अपने दोस्त को तो भेज दी थी ना? क्या उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है या नहीं?
वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा फातिमा वो सब भूल जाओ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा और वो सब किया। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, हम दोनों के एक दूसरे के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरियां भी इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं। मैंने वो वीडियो अपने दोस्त को भेज दी है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब तुम खुशी खुशी अपना फंक्शन एंजॉय करो। फातिमा अब बहुत खुश हो गई थी, मुझे गले लगाकर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सारा मसला हल कर दिया, मैं तुम्हें सारी जिंदगी याद रखूंगी। जब मैंने फातिमा को देखा वो वापस चली गई, पर जैसे ही मेरी नजर सामने गई तो दर्जन आंटी ने हम दोनों को गले लगते हुए देख लिया। अब वो मेरे पास आ रही थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये सब तुमने फातिमा के साथ क्यों किया। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने उनको सारी बात बता दी, मुझे कैसे ये सब करना पड़ा, क्योंकि फातिमा हसन से मोहब्बत करती थी और हसन के साथ मिलने गई थी और वो बोली उसकी शादी होने वाली है, लेकिन तुम अभी तक ये सब कर रहे हो, तुमने फातिमा के साथ ये सब क्यों किया। ये बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं उन्हें क्या बताऊं। मैंने उनको सारी बात बता दी थी कि मुझे कैसे ये सब करना पड़ा, क्योंकि वो हसन से मोहब्बत करती थी और हसन से मिलने गई थी। उसने हसन के साथ वो सब कुछ किया है और मुझे लगा कहीं हसन ने कोई कैमरा तो नहीं लगाया, वो फातिमा को अपने झांसे में ना फंसा रहा हो। इसी डर की वजह से मैंने फातिमा को कहा था कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और वहाँ जब मैंने उसे हसन के साथ वो सब करते देखा तो मेरे जज्बात जाग गए थे। मैं भी उसके साथ वही सब करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने फातिमा को इस जाल में गिरा दिया था ताकि मैं उसके साथ ये सब कर सकूं। मैंने आंटी से कहा था कि आंटी प्लीज आप किसी को भी मत बताना, मैं आपको फ्री कपड़े भी दूंगा। जब वो कहने लगी कि सिर्फ फ्री कपड़े देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें भी अब मेरे साथ वो सब करना होगा, उनकी बात का इशारा मैं समझकर बहुत ज्यादा घबरा गया था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। और आंटी के शोहर का इंतकाल तो बहुत पहले हो चुका था। मैं जानता था कि आंटी के जज्बात कितने ज्यादा हैं। उन पर तरस खाकर मैं तैयार हो गया था और फिर आंटी से कहा कि फातिमा की एक दफ़ा शादी हो जाए, उसके बाद वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर आऊँगा। यूँ उन्होंने मेरी बात मान ली थी और वो खुश हो गई थी। और यूँ फातिमा की शादी के फौरन बाद मुझे उनके पास जाना पड़ा था। मैं जैसे ही आंटी के घर गया वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था और उसके बाद मैंने आंटी के साथ वही सब कुछ किया, क्योंकि अब मुझे डर था कि कहीं वो मेरा ये पोल ना खोल दे। पर आंटी एक तजुर्बेकार औरत की तरह मुझे खुश करने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसका नतीजा ये निकला था कि अब मैं कभी कभार उनके पास चला जाता था। मैं उनके काम भी कर दिया करता था, जबकि बदले में वो मुझे वो सुकून देती थी जो सुकून मुझे कोई जवान औरत भी नहीं दे सकती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जुलाई की एक सुबह थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे कि बारिश शुरू हो गई और फिर लगातार मूसलाधार बारिश ने तूफानी रुख इख्तियार कर लिया, यहाँ तक कि सैलाब आ गया। ऐसा पहली बार हुआ था। हमने पहले से कोई हिफाजती तदबीर इख्तियार नहीं की थी। बाबा जान ऑफिस में थे, घर में अम्मी और छोटी बहन थी। हम 4 घंटे तक सैलाबी बारिश में भीगते रहे। आखिरकार बारिश थम गई, मगर अपने पीछे बहुत सी तबाहकारी छोड़ गई। देर तक भीगे रहने के सबब अम्मी की तबीयत खराब हुई और वो बिगड़ती चली गई। वो कमज़ोर थी। मामूली बुखार ने रफ्ता रफ्ता खतरनाक रूप धार लिया। हम हैरान परेशान थे कि क्या करें। प्राइवेट डॉक्टरों को फीस की सूरत में काफ़ी रकम दे चुके थे। सबने अम्मी को सरकारी अस्पताल दाखिल करवाने का मशवरा दिया कि यही आसान तरीका दिखाई दे रहा था, मगर हालात संवरने के बजाय बिगड़ते गए। मुझे डॉक्टर बनने का बचपन से शौक था। डॉक्टर्स मेरे आइडियल थे। वो मुझे फरिश्ते नजर आते थे, मगर जब उन फरिश्तों से वास्ता पड़ा तो डॉक्टर बनने का ख्वाब टूट गया। जैसे सब लोग खराब नहीं होते, इसी तरह हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बदकिस्मती से जिन डॉक्टरों से हमारा वास्ता पड़ा वो फरिश्तों का रूप धारे हुए कसाई थे। और कसाई तो जानवरों को काटते हैं, मगर ये तो जिंदा इंसानों की खाल उतार देते हैं। अम्मी उनके सामने एक जिंदा लाश थी जिनको वो जिस तरह चाहे तोड़ मड़ोड़ दें। मुझे उस दिन डॉक्टरी के पेशे से ही नफरत हो गई। और फिर कुछ नर्सों का सलूक भी बिजली
बनकर गिरा। माँ की हालत देखकर मेरा दिल बुरी तरह जख्मी हो चुका था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की बेइतनाई और लापरवाही ने मुझे मजीद मायूस किया। जब अम्मी को अफाका ना हुआ तो नाचार एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया। छोटी बहन पर माँ की बीमारी और लोगों की बातों का इतना असर हुआ कि उसने बहकी बातें शुरू कर दी, मगर मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। माँ को सबसे ज्यादा इंतजार भी शाहिद का था। वो अकलौता बेटा था जिसे उन्होंने बड़ी मिन्नतों मुरादों से पाया था। जिन दिनों में तीसरी जमात में थी, शाहिद पैदा हुआ था। वो बहुत खूबसूरत था, जो देखता देखता रह जाता। एक दिन वो अचानक बीमार हो गया और बचने की उम्मीद ना रही। अम्मी और बाबा के पैरों तले से जमीन निकल गई। बड़े काबिल डॉक्टरों को दिखाया, सबने यही कहा कि इसे दुआओं की जरूरत है, और मेरे वालिदैन उसकी शफायाबी की खातिर सजदे में गिर गए। उन दिनों उन्होंने खूब खैरात भी की, मगर मर्ज समझ में ना आता था। लोग कहते कि बच्चे को नजर लग गई है, इस पर पढ़ाई करवाओ। गर्ज जो जैसा कहता, ये परेशान माँ बाप वैसा करने लगते थे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आ गया और मेरा भाई 1 साल की बीमारी के बाद ठीक हो गया। सब कहते कि ये सूखे की बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकता, मगर पैदा करने वाली जात बड़ी अजमत और ताकत वाली है। उसकी मेहरबानी से उसे नई जिंदगी मिल गई। अम्मी ने 4 साल की उम्र में उसे स्कूल दाखिल करवा दिया था। वो बला का ज़हीन था, हमेशा अव्वल आता। इस बात पर मेरे वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो जाता था। बाजी की शादी के दौरान उसने पेपर्स दिए और ग्रेड में पास हो गया। भाई की कामयाबी की खुशी में बाबा जान ने सारे खानदान की दावत की। उन दिनों बाजी की छोटी नंद रोशना अमेरिका से आई हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लड़कियां तक उस पर से नजर न हटा पा रही थी, मगर वो मेरे भाई पर फिदा हो गई, जबकि शाहिद ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। रोशना ने बाजी से कहा, भाई मुझे आपका भाई बहुत पसंद आया है, मैं तालीम मुकम्मल कर लूं तो आप मुझे भाभी बना लेंगी। बाजी बोली, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, जब तुम तालीम मुकम्मल कर लोगी तो मैं अम्मी से बात करूंगी और उस वक्त तक शाहिद भी तालीम मुकम्मल कर लेगा। बेशक रोशना भी मेरे भाई को अच्छी लगी थी, लेकिन भाई को तालीम मुकम्मल करनी थी। वो वापस अमेरिका चली गई ताकि दोनों अपनी अपनी डिग्रियां लेने के बाद नई जिंदगी शुरू कर सके। शाहिद ने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर ली तो उसे सऊदी अरब में जॉब मिल गई और वो वहां चला गया। उसने वहां मेहनत से काम किया, उसमें कोई बुरी आदत न थी। हालांकि तनख्वाह अच्छी मिलती थी, फिर भी वो खुद पर बहुत कम पैसे खर्च करता और ज्यादा रकम घर भिजवा दिया करता। अम्मी शदीद बीमार पड़ी तो उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा आ जाए। भाई को खत लिखकर अम्मी की बीमारी का बताया तो उसने वतन वापस आने का इरादा कर लिया। वो भी हमसे मिलने को बेचैन था। उसने हमारे लिए बहुत सी चीजें खरीदी। इधर अम्मी और अब्बू ने फैसला कर लिया कि जब शाहिद पाकिस्तान आएगा तो उसकी शादी रोशना से कर देंगे। उन्हीं दिनों वो भी पाकिस्तान आने वाली थी। जिस दिन भाई के आने की इत्तला मिली, हम बेहद खुश थे। घर को साफ सुथरा करके सजाया। हम बेहद खुशी और शिद्दत से उसके मुंतजिर थे, मगर क्या खबर थी कि वो आएगा तो जिंदा नहीं। जब वो शॉपिंग करके वापस लौट रहा था, एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वहीं दम तोड़ गया। ये खबर बाजी और बहनोई को शाहिद के दोस्तों ने दी। उनको यकीन नहीं आ रहा था। दोस्त बहुत रंजीदा थे और सोच रहे थे कि शाहिद के घर वालों को कैसे इतला करें। शाहिद ने उन्हीं दोस्तों के साथ पाकिस्तान आना था। बहरहाल बाजी और बहनोई साहब ने अम्मी को इस हादसे की इतला न दी। जिस रोज मैयत आने वाली थी, घर वाले इंतजार में थे कि शाहिद आ रहा है, और मेरी बहन और बहनोई इस सोच में थे कि हम लोगों को कैसे बताएं क्या होने जा रहा है। अम्मी बार बार सवाल करती, मुझे बताओ मेरा बेटा कितने बजे पहुंचेगा, मगर जाने क्यों बहन और बहनोई ने हमें आखिरी वक्त तक ये ना बताया कि वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा आ रहा है। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। हम दोनों बहनों ने नए कपड़े पहने हुए थे, मगर बाजी ने नए कपड़े नहीं पहने। अब्बू ने फूलों के सेहरे खरीद कर अपने कमरे में रख लिए कि जब वो घर में दाखिल होगा तो उसके गले में डाल देंगे। बहनोई एयरपोर्ट गए हुए थे, तभी दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी, जिसे मैयत गाड़ी कहना चाहिए। लोग जमा हो गए। बाबा जान फूल लेकर बाहर गए। वो हाथों में फूल लिए हुए थे। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक ताबूत बाहर निकाला गया। वालिद उस मंजर को बर्दाश्त न कर सके और वहीं जमीन पर बैठ गए। ताबूत घर में तख्त पर रख दिया गया था। माँ भी बेहोश हो गई। मोहल्ले की औरतें हमें संभाल रही थी। भाई शाहिद बस चंद लम्हों को आया था और फिर वापस जा रहा था। ऐसे मंजर को कौन भुला सकता है। मैयत के साथ उसके दोस्त वो सूटकेस भी लाए थे जिसमें हमारे लिए तोहफे थे। डॉक्टरों ने अम्मी को 2 दिन तक दवाएं देकर सुलाते रहे। 3 दिन बाद वो हवास में लौटी। तब तक जिसका इंतजार था वो जा चुका था। वो 1 हफ्ता भी जिंदगी का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और हमें छोड़कर अपने प्यारे बेटे के पास चली गई। अम्मी की आदत थी कि वो रोज मुझे चाय बनाने को कहती थी।
میں اب بھی روزانہ مقررہ وقت پر چائے بناتی، ایک کپ اپنے لیے اور دوسرا اپنی امی کے لیے، اور چائے کے ساتھ آنسو بھی پیتی تھی۔ میری چھوٹی بہن کا تو ماں اور بھائی کے غم میں دماغ ہی متوازن نہ رہا۔ بہنوئی بھی گم سم رہتے تھے۔ بابا جان تو ایسے نظر آتے جیسے ان کی یادداشت چلی گئی ہو۔ رشتہ دار ایک ایک کر کے چلے گئے، بس ہم اکیلے رہ گئے۔ کافی عرصے میرے والد صاحب فراش رہے، پھر ہماری خاطر اپنی شخصیت کا تنکا تنکا اکٹھا کر کے خود کو دوبارہ مرتب کیا، مگر زخم دل نہ بھر سکا۔ آج اس واقعے کو 30 برس سے اوپر بیت گئے ہیں، مگر جب وہ منظر یاد آتا ہے تو دماغ کو جھٹکا سا لگتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ کبھی دل ماں کو پکارتا ہے اور کبھی بھائی کو آواز دینے لگتا ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ ان کی ماں مر گئی ہے، ان کا بھائی مر گیا ہے، تب دل کرتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لوں۔ ان لوگوں سے کیسے کہوں کہ ماں اور بھائی جتنا ہمارے قریب پہلے تھے اب بھی ہیں، جن سے ہم سچا پیار کرتے ہیں، وہ جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتے، ہمارے دل کے اندر رہتے بستے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مجھے میری ماں اور بھائی یاد نہ آتے ہوں یا میرے خواب میں نہ آتے ہوں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہر بھائی اور ہر ماں کو سلامت رکھے، خصوصاً غیر شادی شدہ لڑکیوں کو بے ماں نہ کرے۔ چھوٹی بہن پوری طرح صدمے کے دائرے سے نہ نکل سکی، اس لیے اس کا رشتہ کہیں نہ ہو سکا۔ پھر میں نے بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر میں گھر بسا لیتی تو میرے بوڑھے والد اور بے ہوش بہن کو کون سنبھالتا۔ بابا جان ہمیشہ یہی افسوس کیا کرتے تھے کہ رابعہ اگر گھر بسا لیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تب میں جواب دیتی، بابا جان شاہد تو چلا گیا جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اب میں خود کو اس کی جگہ سمجھتی ہوں۔ جب تک وہ زندہ رہے میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ آخری دنوں میں بیمار پڑ گئے، میں ان کو ایک چھوٹے بچے کی طرح سنبھالتی تھی، اور چھوٹی بہن تو کبھی کبھی کھانا کھانا بھی بھول جاتی تھی۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا پڑتا ہے، اسے نہلانا، کپڑے بدلوانا، یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے۔ اس کا علاج بھی کروایا ہے، مگر وہ صحیح نہ ہوئی، اسی وجہ سے میں نے گھر نہیں بسایا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کام میرے سپرد کیے، میں نے انہیں بخوبی نبھانے کی پوری سعی کی تاکہ خدا مجھ سے راضی ہو۔ اب بہن کے ساتھ زندگی کے باقی دن بھی عزت سے گزر جائیں، یہی خدا سے دعا کرتی ہوں۔ آگے کیا تقدیر میں لکھا ہے یہ تو اوپر والا ہی جانے، کہ وہی وسیلہ، وہی رحیم و کریم ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اس نے اپنے بندوں پر رحم کرنے کا وعدہ کیا ہے، بشرط یہ کہ انسان اس کے احکامات سے روگردانی نہ کرے۔